غرور وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ غرور انسان کو آسمان پر چڑھاتا ہے مگر زمین پر منہ کے بل گراتا ہے۔ جب بندہ میں کہتا ہے تو اللہ اسے یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں تو نہیں۔ جب انسان اپنی لالچ کو عقل اور ایمان پر ترجیح دے تو دولت نہیں دھوکہ کماتا ہے، اور دھوکہ ہمیشہ لوٹ کر اپنے ہی گھر آتا ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو تجوری میں ہو، بلکہ اصل دولت وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ جب لالچ انسان کو اندھا کر دے تو عبرت کا لمحہ اسے دوبارہ بینا بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس بندے کو بھی لوٹا دیتی ہے جو ٹوٹ کر توبہ کرے۔ توبہ صرف الفاظ نہیں، ایک انقلاب ہے جو دل کو بدل دیتا ہے۔ جو اپنی غلطی کو پہچان کر لوٹ آئے، اللہ اسے اس سے بہتر بنا دیتا ہے جو وہ کبھی تھا۔ اب شہر میں حارث کا نام صرف ایک تاجر کے طور پر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے طور پر لیا جانے لگا تھا۔ لوگ اس کے دروازے پر جھکتے، نوکر اس کی گاڑی کے آگے دوڑتے اور سیاستدان اس کے در پر سفارشیں لے کر آتے۔ اس کے الفاظ قانون بن چکے تھے، جو حارث چاہتا تھا وہی ہوتا۔ سونے کے دروازے، چمکتے فرش، ہر کمرے میں روشنی، مگر دل کے اندر اندھیرا۔ اب وہ دن میں تجارت کرتا اور رات کو شراب کی محفلیں جماتا۔ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے اپنی محنت سے دولت کمائی ہے۔ اللہ کا شکر تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ قسمت بھی میری غلام بن گئی ہے۔ اسی لمحے ایک بڑا ملازم جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا ہچکچاتے ہوئے بولا، مالک، غرور خدا کو پسند نہیں۔ جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ حارث نے غصے میں مٹھی میز پر ماری، چپ رہو، میں خود اپنی قسمت لکھتا ہوں، اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بوڑھا نوکر خاموش ہو گیا، اس کی آنکھ میں افسوس اور خوف ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اگلی صبح حارث بازار پہنچا۔ اس نے اپنی کمپنی کے سامنے ایک نیا بورڈ لگوایا، حارث اینڈ سنس، رزق ہم بناتے ہیں۔ یہ الفاظ دیکھ کر ایک فقیر آگے بڑھا اور بولا، رزق تم نہیں بناتے بیٹا، رزق تو وہ دیتا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، اگر وہ دیتا ہے تو مجھے ہی زیادہ کیوں دیا؟ شاید میں اس کا محبوب ہوں۔ فقیر کے ہونٹ کانپے، محبوب نہیں، شاید تم اس کی آزمائش ہو۔ لوگوں نے سنا مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ غرور کا شور سچ کی آواز کو دبا چکا تھا۔ اسی دن شام کو آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہوئی۔ لوگوں نے کہا شاید بارش آنے والی ہے، مگر وہ بارش نہیں، آزمائش تھی۔ شہر کے نالے بند ہو گئے، بارش کا پانی گوداموں میں گھس گیا اور حارث کا نیا گودام بھی ڈوبنے لگا۔ نوکر دوڑتا ہوا آیا، مالک، گودام میں پانی بھر گیا ہے۔ حارث نے چیخ کر کہا، سب سامان نکالو، سونا، چاندی، ریکارڈز، سب نکالو۔ پانی اتنا تیز تھا کہ نہ آدمی سنبھلے نہ سامان۔ گودام کا دروازہ ٹوٹ گیا اور سارا مال بہہ گیا۔ حارث کی آنکھوں کے سامنے اس کی کمائی، اس کی محنت، اس کا غرور سب بہہ گیا۔ وہ چیختا رہا، نہیں، یہ میرا حق تھا۔ اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ آسمان سے بجلی کڑکی اور جیسے کسی نے جواب دیا، یہ تیرا نہیں تھا، یہ میرا تھا۔ صبح جب پانی اتر گیا تو شہر کے لوگ حارث کے گودام کے کھنڈرات دیکھنے آئے۔ کسی نے کہا یہ غرور کا انجام ہے، کسی نے کہا اب اسے سمجھ آیا ہوگا رزق انسان نہیں بناتا۔ حارث چپ بیٹھا تھا، مٹی سے لتھڑا ہوا، پتھر کی طرح بے جان۔ اس رات وہ چھت پر بیٹھا تھا، چاند آدھا تھا، جیسے اس کی قسمت وہ خود سے کہہ رہا تھا، میں نے کیا غلط کیا؟ بس اتنا کہ خود کو طاقتور سمجھا۔ کیا غرور اتنا بڑا گناہ ہے؟ غرور وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ غرور انسان کو آسمان پر چڑھاتا ہے مگر زمین پر منہ کے بل گراتا ہے۔ جب بندہ میں کہتا ہے تو اللہ اسے یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں تو نہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، شہر کی گلیاں خاموش تھیں، مگر تاجر کا دماغ طوفان کی طرح شور مچا رہا تھا۔ اس کا لالچ اب اس کے ضمیر پر مکمل قبضہ کر چکا تھا۔ اب وہ صرف منافع دیکھتا تھا، نہ انصاف، نہ انسانیت۔ اس نے اپنی دکان میں نئی چالیں چلنا شروع کر دی۔
सस्ता माल खरीद कर कीमती बना कर बेचना, लोगों को धोखा देना, छोटे झूठे वादे करना, ये सब उसके रोज के मामूलात बन गए। एक सुबह एक नौजवान गाहक आया, मासूम चेहरा मगर दिल में उम्मीद भरी थी। वो बोला, ताजिर साहब, सुना है आप ईमानदार आदमी हैं। मैंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ जेवर बनवाने हैं। ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, मेरे जैसा दयानतदार पूरे शहर में नहीं मिलेगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन मैंने सोचा ये तो नया है, इससे दुगना कमाऊंगा। ताजिर ने नकली सोना दिखाकर असली बताया और कीमत भी असली सोने जितनी वसूल कर ली। नौजवान खुश होकर चला गया। इस दिन से ताजिर के दिल में शैतान ने जड़ पकड़ ली। धोखा इसे ताकत देने लगा। वक्त गुजरता गया, ताजिर की दौलत बढ़ने लगी, दुकान वसी हो गई, लेकिन दिल की रोशनी मध्यम पड़ती गई। अब वो ना सिर्फ धोखा देता था बल्कि गरीबों का मजाक भी उड़ाता था। एक दिन एक मजदूर आया, इसकी मजदूरी देनी थी, मगर ताजिर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, जा पहले हिसाब देख, शायद तू मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। मजदूर के चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप वापस चला गया। दुकानदारों ने देखा मगर कोई बोल न सका। अब ताजिर के गिर्द चापलूस जमा होने लगे। हर शख्स इसके आगे पीछे घूमता, खुशामद करता। वो समझने लगा कि इज्जत, दौलत और ताकत सब कुछ इसके बस में है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को खुदा समझने लगे, ज़वाल करीब होता है, और इस दिन की आहट आ चुकी थी। एक दिन उसके सबसे बड़े गाहक ने सामान की अदायगी में ताखीर कर दी। ताजिर गुस्से में आग बगोला हो गया, चीख कर बोला, मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूँ, मेरे साथ धोखा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसी लम्हे इसके मुलाजिम ने सर झुका कर कहा, हुजूर, शायद वही आपसे सच्चा सौदा चाहता था, मगर आपने पिछली बार इसे भी नकली माल दिया था। यह सुनकर ताजिर का चेहरा सुन्न हो गया। सच उसके गुरूर के पर्दे को चीर चुका था। चंद दिनों में खबरें फैलने लगी। लोगों को इल्म हो गया कि ताजिर धोखेबाज है। जो गाहक कल उसके कदमों में बैठते थे, आज उसकी दुकान के सामने से भी नहीं गुजरते। एक एक करके उसके मजदूर भी छोड़ के कर चले गए। इसका गुरूर, इसका जलाल, इसका माल सब मिट्टी में मिलने लगा। वो अपनी खाली दुकान में बैठा एक पुरानी रोशनदान से आती रोशनी को देखने लगा, और पहली बार उसके दिल में एक आह निकली, मैंने ये सब खुद किया है, अल्लाह, मैंने जुल्म किया है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो पहला आंसू इसके ज़वाल का नहीं बल्कि तौबा की शुरुआत का निशान था। जब इंसान अपनी लालच को अकल और ईमान पर तरजीह दे तो दौलत नहीं, धोखा कमाता है, और धोखा हमेशा लौट कर अपने ही घर आता है। सुबह का वक्त था, मगर ताजिर के घर में अंधेरा छाया हुआ था। वही शख्स जो कभी बाजार का बादशाह कहलाता था, आज दरवाजे पर बैठा था, खाली हाथ, बिखरे बाल और चेहरे पर पछतावे की लकीरें। दुकान खाली, गाहक गायब, इज्जत मिट्टी में। इसके पड़ोसियों ने सलाम करना भी छोड़ दिया था। जिस बाजार में कभी उसके आने पर लोग रास्ता साफ करते थे, आज वो बाजार उसके लिए अजनबी लगता था। वो धीरे से बड़बड़ाया, ये वही दुनिया है या मैं बदल गया हूँ? लेकिन अंदर से एक आवाज आई, दुनिया वही है, बस तू अंधा हो गया था। एक दिन कुछ लोग इसके घर आए, वही लोग जिन्हें कभी इसने धोखे से लौटा था। एक बोला, ऐ ताजर, तूने मेरा सोना चुराया, मेरा माल झूठ से बेचा, अब हिसाब चुका। ताजर ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। एक बूढ़ी औरत बोली, जब हमारे बच्चे भूखे थे तो तू हंसता था, आज तेरा हाल देख, ये इंसाफ है। ताजर खामोश रहा। पहली बार इसके दिल ने माना कि जुल्म का बोझ हमेशा वापस आता है। रातें लंबी होने लगी। वो कभी छत को देखता, कभी अपने खाली हाथों को। कमरे के कोने में उसका पुराना तराजू पड़ा था, जिससे वो कभी इंसाफ तोड़ता था। इसने आहिस्ता से तराजू उठाया और रोते हुए बोला, मैंने तुझसे इंसाफ छीना और आज इंसाफ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आंखों से आंसू बहते गए।
और दिल में पछतावे की आग जलने लगी। एक दिन वो बाजार के एक कोने से गुजर रहा था। अचानक इसने देखा वही नौजवान जिससे इसने नकली सोना बेचा था। अब वो जवान एक छोटी सी दुकान का मालिक बन चुका था। ताजर झुक झुक कर करीब गया। जवान ने पहचाना मगर मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे। ताजर साहब, मैंने आपके धोखे से एक सबक सीखा है, रिज्क हमेशा सच्चाई से आता है। ताजर के कदम लड़खड़ा गए। उसने पहली बार एक धोखे से पैदा होने वाली नेकी देखी। आंखें भर आईं। वो बोला, बेटे, तूने मुझसे वो सच खरीद लिया जो मैंने कभी बेचा ही नहीं। रात को वो वजू करके बैठ गया। पहली बार दिल से रोने लगा। अल्लाह के सामने सर झुकाकर बोला, ऐ मेरे रब, मैं अंधा हो गया था। मैंने सच को झूठ और ईमान को लालच के नीचे दबा दिया, मगर तू गफूर है, मुझे मुआफ कर दे। कमरे में एक अजीब सुकून उतर आया। दूर अजान की आवाज गूंजी। इसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक रोशनी छा गई, वो रोशनी जो ईमान की वापसी की अलामत थी। अगली सुबह वो बाजार के दरवाजे पर आया। अब इसके हाथ में सोना नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसने एक छोटी सी दुकान खोली जिस पर लिखी थी, हलाल कमाई सच्चा सौदा। लोग हैरान थे। कुछ दिनों में उसकी ईमानदारी मशहूर होने लगी और वो समझ गया असल दौलत वो नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि असल दौलत वो है जो दिल को सुकून दे। जब लालच इंसान को अंधा कर दे तो इबरत का लम्हा इसे दोबारा बिना बना देता है। अल्लाह की रहमत उस बंदे को भी लौटा देती है जो टूट कर तौबा करे। रात के बाद जैसे ही फजर की अजान हुई, ताजर ने अपने आंसू साफ किए, वजू किया और सजदे में गिर गया। इसके लबों पर एक ही जुमला था, ऐ अल्लाह, मुझे वो बना दे जो मैं पहले बनना चाहता था मगर बन न सका। उसी लम्हे इसके दिल पर एक अजीब सुकून उतरा, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में चिराग रोशन कर दिया हो। अब वो ताजर नहीं रहा बल्कि तायब इंसान बन चुका था। वो कई बरस बाद मस्जिद गया। लोग इसे देखकर हैरान हुए। कुछ ने सरगोशी की, कुछ ने तंज किया, मगर वो मुस्कुराकर सफ में खड़ा हो गया। इमाम की आवाज गूंजी, कद अफला मन तज़का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नमाज के बाद इसके आंसू नहीं रुके। वो महसूस कर रहा था जैसे इसके गुनाह धुल रहे हों। ताजर ने अपनी नई दुकान में काम शुरू किया। अब वो झूठ नहीं बोलता था। जब कोई ग्राहक आता तो वो साफ कहता, भाई ये माल अच्छा है मगर पुराना है, अगर चाहो तो कम दाम में ले लो। कुछ लोग हैरान होकर मुस्कुराते, कुछ कहते सब बदल जाता है जब दिल बदल जाए। एक दिन एक बूढ़ा खरीदार आया। ताजर ने उसे वही माल बेचा जो पहले कभी धोखे से बेचा था, मगर अब ईमानदारी से। बूढ़े ने कहा, बेटा, तेरे लहजे में ईमान की खुशबू है। ये जुमला ताजर के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। ताजर अब हर इस शख्स के पास जा रहा था जिसे इसने कभी धोखा दिया था। कभी किसी का दरवाजा खटखटाता, कभी किसी मजदूर को ढूंढता। एक दिन उसने वही गरीब मजदूर ढूंढ लिया जिससे उसने मजदूरी छीनी थी। ताजर ने जमीन पर बैठकर कहा, भाई, मेरे मुजरिम हो, मुझे माफ कर दे। ये तेरी मजदूरी और इस पर सूद भी। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, अल्लाह तुझे माफ करे क्योंकि तूने अपनी अना तोड़ दी। और ताजर ने इस दिन जाना कि असल ताकत माफी मांगने में होती है, जुल्म करने में नहीं। कुछ दिनों बाद एक बड़ा ग्राहक आया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा झूठ बोल कर हम दोनों ज्यादा कमा सकते हैं। ताजर के सामने शैतान ने फिर से दरवाजा खोला। चंद लम्हे के लिए इसका दिल लर्जा। फिर इसने मजबूत लहजे में कहा, मैं वो शख्स नहीं रहा जो कभी अंधा था। अब मैं देख सकता हूँ अपने रब को, अपने ज़मीर को। ग्राहक खामोश हो गया और उस दिन ताजर ने अपनी सबसे बड़ी आजमाइश जीत ली। शाम ढल रही थी। ताजर अपनी दुकान के बाहर बैठा गुरूबे आफताब को देख रहा था। हवा नरम थी, दिल मुतमईन था। इसने आहिस्ता से कहा, मेरे रब, अगर तूने मुझे पहले अंधा किया तो अब बीना कर दे। मैं अब तेरी रजा में जीना चाहता हूँ। इसके चेहरे पर नूर उतर आया। लोग कहते थे, ये वही ताजर है जो कभी गरूर में अंधा था। अब देखो,
ایمان نے اس کا چہرہ روشن کر دیا۔ توبہ صرف الفاظ نہیں، ایک انقلاب ہے جو دل کو بدل دیتا ہے۔ جو اپنی غلطی کو پہچان کر لوٹ آئے، اللہ اسے اس سے بہتر بنا دیتا ہے جو وہ کبھی تھا۔